Hello everyone. Today we are going to discuss about the privacy concepts in e-commerce. So let's proceed. First, we are going to discuss about the a famous personality. What does he say about the privacy? Then we will find out about what actually privacy is. Then how it is related to e-commerce, and then we'll be providing various solutions related to your privacy. So let's proceed. So Scott McNealy, the co-founder of Sun Microsystems, says that privacy is dead. Get over it. That means if you are not concerned about privacy, if you will not take care of your privacy, then you are a dead personality. That means everything lies in the privacy. If privacy is protected, it means you are safe living in the society. But if privacy gets leaked, so there can be worst harmful situations arise because of the privacy issues. So you must take care of the privacy. You must get over of it. If you will not get over of it, then definitely it's a death sentence. So there are some inconvenient truths about the privacy. That what are these? That within 1 minute I can find out about your address, your marriage status, your SSN, your gender, your driving license, your records of other convictions, and a lot more information just in a few seconds, or you can say within a minute. In 5 minutes, if you generally take about, I can check any prior divorces, employment records, lawsuits, and personal photos of anyone, anywhere. Also, in half an hour, I will know your race, your sexual orientation, political preferences. I will know the books you read, things you like, and the friends you have. And all that without leaving my desk. That means sitting at my home on my system, I can find out these kind of informations about any person just in a few moments of time, if you say. ऑल्सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड. आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं इसको. क्रॉस रेफरेंस, आप इसको क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो, कहीं और पे यूज कर सकते हैं. एंड कन्वीनियंटली पैकेज्ड विद ए बो ऑन टॉप. एंड you can manipulate the information that you have access to in your own way. Also, you just need to know where to look. आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको वो चीज कहाँ देखनी है. यू नीड टू फाइंड आउट appropriate resource for that, and everything is in your hands. Most of the time we have disclosed this information ourselves. That means जो इंफॉर्मेशन, जो प्राइवेसी है इंडिविजुअल पर्सन की, उसको कोई और लीक नहीं करता. वी ourselves leak that information either knowingly or unknowingly, general in case of ignorance. So these are the various consequences that may arise if you are not aware about the privacy and its concerns. So you must protect the privacy for to avoid such kind of inconvenient situation. So it's always a good idea not to give out too much personal information. इसलिए कहीं भी कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, so you must take care that whatever the desired or sufficient information you need to provide to the particular platform that is asking for your information. If you want to have some services from that platform, so you just need to provide only that information which is mandatory to provide access to the resources, not everything. You must be concise about the sharing of your information, your personal information.
What privacy is not? Privacy क्या नहीं है? Privacy is not security. That means security and privacy are totally two different things. Let's discuss. So what security is? Security is confidentiality, integrity, authentication, non-repudiation. Confidentiality, that means hidden from others. Integrity, the information not altered. Authentication, only authorized person have access to the resources. Non-repudiation, if you have accessed or used some kind of information, you can't deny. So this is what actually security is. But if you talk about privacy, then privacy is data protection, fair information practice principles. So privacy generally deals with the protection of data related to the individual personal, and it leads to the usage of fair information practice principles. That means you need to follow some rules and regulations while you are having access to a particular information, or you are sharing your information with others over the web resources. So what actually privacy is? So privacy tells where is my data. It is defined by privacy where and who have access to my data, how is it being used, और वो डाटा जिसके पास भी है वो उस डेटा को किस पर्पज के लिए यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है, किन रिसोर्सेज के ऊपर यूज कर रहा है, किस मोटिव के साथ यूज कर रहा है, एंड हु एक्चुअली सीज इट। और वो इंफॉर्मेशन जो भी आपने शेयर कर रखी है कहीं पे भी है आपके डाटा, उस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन उसको देख सकता है। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली प्राइवेसी टेल्स। So it is the general meaning of privacy is freedom from unauthorized intrusion. That means आपकी जो डेटा है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, without your concern, without your permission, no one else can have access to it without your legitimate permission. So it is freedom from unauthorized intrusion. Unauthorized intrusion कोई भी नहीं कर सकता आपकी, because that is information. If you are knowingly or unknowingly sharing that information, so that is a different thing. But if you don't want to share any information with anyone, no one can intrude or no one can forcefully have access to that information. So you have to be very careful about the privacy. Why do we disclose information, personal information? आप क्यों शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, किस लिए जरूर करनी पड़ रही है भाई, आपको क्या मजबूरी आ रही है ऐसी? देर आर वेरियस वेज एंड मीन्स। तो डिफरेंट वंडर्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे फोर्स द इंडिविजुअल पर्सन्स टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन for different kind of purposes, for to provide different kind of benefits to the user, different kind of resources, tools to the user. They have they access your information, and you to use those resources, आपको वो यूज रिसोर्सेज यूज करने हैं, आपको उनकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप अपनी इंफॉर्मेशन क्या करोगे, प्रोवाइड कर दोगे। जनरली आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हो, तो कोई भी आप इंस्टॉल करते हो तो कुछ परमिशंस की डिमांड करती है। अब वो परमिशन डिमांड करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी परमिशन जो डिमांड कर रही है वो उसको चाहिए ही चाहिए अपने फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए। बट सम एप्लीकेशंस पुट रिस्ट्रिक्शंस कि आप उनको अलाउ करोगे तभी वो एप्लीकेशन काम करेगी, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। तो you disclose your information because you want to use that app. So why do why do we disclose? Because we want to security, we want security. Identity cards, if you are working in an organization you need an ID card, if you are the citizen of a country you need an ID card, if you are working in a particular department or any authenticated personality, you are related to any services, an identity card, and for that identity card you need to provide information,
you need to disclose your information. Convenience, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, चीजों को कन्वेनियंट सिंपल बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सोप हाई एंड फैशन ऑन गिल्ट in your pajamas. If you want to shop a high-end fashion, so you will be using the e-commerce platforms, and for that you will need to provide information. You will have to have an account on the e-commerce portal, and then you have to provide your payment details and other personal details for delivery, and you have to disclose your address and everything. So to make the life convenient, because you are sitting at home, you want to shop something, and for that you need to provide information. Other benefits like talking to friends on Facebook. फेसबुक के ऊपर आप फ्रेंड्स के बाद आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस टाइम पे जा रहे हो, कौन से होटल में रुके हो, वहाँ पे क्या डिश आपने ऑर्डर की है, कहाँ घूम रहे हो, कौन कौन सी जगह आपने सर्व की है. एवरीथिंग यू डिस्क्लोज विद योर फ्रेंड्स ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, and that information is public. Anyone can have access to it. So you are disclosing the information. This is what you want to do. For that you disclose the information. Then you have to, what you have to, because there are some legal restrictions. For that you have to provide your information, you have to disclose the information. For example, legal requirements के लिए कोई भी legal requirement, आपको आधार कार्ड बनवाना है, आपको पैन कार्ड बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, उसके लिए you have to provide the complete details of yours. Commercial requirements, आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल्स डिफाइन करने पड़ेंगे बैंक के अंदर. आपको लोन लेना है, you have to completely define all the details related to your personal details, your property details, your earnings, your job, everything you need to define and disclose. And the last and the most important thing, you disclose your information because you don't care. कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कौन सा व्हाइट हाउस का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई एक्सेस कर लेगा. दिस इज द इग्नोरेंस लेवल ऑफ द पर्सन कि मेरे क्या होता है. बट दीज थिंग्स व्हेन कलेक्टिवली कंबाइन दे कैन lead to the harmful impacts on the individual's life. So if you talk about privacy in e-commerce today, so the public opinion poll in June 2004, if you talk about, a survey said 2,136 adults were online and found that 65% had declined to register at e-commerce site. 65% ने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया कि ई-कॉमर्स साइट के ऊपर हम रजिस्टर नहीं करेंगे. क्यों? ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स. If you see in the diagram, there are various examples shown. Canadians choose Google over data sharing program. Privacy groups call Amazon policy deceptive. Vodafone employees act over privacy breach. So it is a most important concern in today's world. More and more data is available on, as the time progresses, data is increasing day by day over the web resources. E-commerce companies deal with multiple of third parties. आप ई कॉमर्स आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन आप तो फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हो, लेकिन फ्लिपकार्ट के बैक एंड के ऊपर उस कंप्लीट जो परचेज प्रोसेस है उसके अंदर देयर आर वेरियस थर्ड पार्टी वेंडर्स फॉर पेमेंट, फॉर डिस्चार्ज, फॉर you can say warehousing, for transportation, delivery, and other things. Perimeter of the network no longer clearly defined. If you are using the e-commerce, no, if you are providing the information not specifically defined that who is actually going to use that information, not a particular boundaries are defined for that. Companies can be acquired and privacy policies may change. आज एक कंपनी है, उसको किसी और ने खरीद लिया, अब वो अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी चेंज करेगा, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करेगा.
तो क्या होगा, आपने प्रोवाइड की थी इन्फॉर्मेशन किसी और को, लेकिन वो दूसरे ने क्या कर दिया, अपनी पॉलिसी चेंज कर दी रिलेटेड टू प्राइवेसी। अब उस डेटा को और पर्पज के लिए भी यूज कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द यूसेज और द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ग्लोबल कंपनीज नीड टू डील विद डिफरेंट रेगुलेशंस। कंपनीज आर इन ग्लोबल मार्केट, तो एक कंपनी है जो इंडिया में भी डील कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रही है, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, तो वो क्या करेंगे, हर कंट्री के क्या होते हैं, डिफरेंट प्राइवेसी लॉज होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू डील विद दोज रेगुलेशंस। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी प्राइवेसी कैन बी, प्राइवेसी यूसेज ऑफ योर इंफॉर्मेशन कैन वेरी। This is the data provenance. If we were talking about the e-commerce portal, so in that you can see when you place the order on a particular e-commerce site, so this is the primary company or the organization to whom you are providing the information. लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट कार्ड इज चार्ज, क्रेडिट कार्ड चार्ज होगा एक थर्ड पार्टी कंपनी जो उसको प्रोसेस करेगी, वेरीफाई करेगी, उसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। देन ट्रांजैक्शनल ईमेल इज सेंड टू कस्टमर, फिर ट्रांजैक्शन के लिए ईमेल जाएगी कस्टमर के पास, उसके लिए जो कम्युनिकेशन जो एजेंट होगा दैट इज आल्सो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। देन warehouse fulfillment where data is stored, where your products are placed at a centralized location, warehouse। अब उसके अंदर आपका ऑर्डर वहां से डिस्पैच करना है, तो वहां पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल होगी, दैट इज आल्सो थर्ड पार्टी वेंडर। शिपिंग कैरियर पिक्स अप पैकेज, अब जो कोरियर सर्विसेज वाले हैं जो आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे आपके प्रोडक्ट को आपके घर तक, उनके पास भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, और उसके बाद वो क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो यू कैन सी आपने ऑर्डर किया एक पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन उसके बैकएंड पे 4 5 6 थर्ड पार्टीज होती हैं जो काम करती हैं आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए घर तक, और सबके पास आपकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो जाती है। सो प्राइवेसी पॉलिसीज, तो प्राइवेसी पॉलिसी क्या करती है कि हैव ए क्लियर पॉलिसी अबाउट व्हाट डाटा इज कलेक्टेड एंड हाउ इट्स यूज्ड। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप डेटा प्रोवाइड करते हो, वहाँ उसकी डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज होती है जिसके अंदर क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि क्या क्या डाटा कलेक्ट करना है और वो किस पर्पज के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ सिम कार्ड के लिए ले रहे हो तो सिर्फ उस सिम कार्ड के एक्टिवेशन के लिए ही वो डेटा यूज हो, ना कि वो डेटा किसी और थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी सेल कर दे और फिर वो किसी डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और मेलिशियस एक्टिविटीज। प्राइवेसी पॉलिसी इज लिंक्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन पेज। आपका जो रजिस्ट्रेशन, जब भी आप रजिस्टर करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल के ऊपर, तो रजिस्ट्रेशन पेज होता है, उसके ऊपर आपकी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं होती है, सिर्फ एक छोटा सा लिंक दिया होता है नीचे प्राइवेसी पॉलिसी नाम से, उस पर क्लिक करोगे तो सारी प्राइवेसी पॉलिसीज ओपन हो गई आपके सामने, फिर आपको पता चलेगा व्हाट एक्चुअली प्राइवेसी पॉलिसी इज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्योंकि वी आर इन ए वेरी हरी एंड वी आर हैविंग नेचर ऑफ इग्नोरेंस, तो हम नहीं देखते, और नहीं देखते तो क्या होगा, we just proceed without understanding, without reading the privacy policy terms, so that is not a good habit। so इसके लिए क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई योर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो वेरी सिंप्लीफाइड होना चाहिए, दैट मीन्स सिर्फ वही डेटा उसके अंदर आस्क्ड होना चाहिए जो रिक्वायर्ड है, जो नीडेड है। ओनली आस्क फॉर डेटा इफ इट्स नीडेड, अगर जरूरत है तो ही उसको आप पूछें, नहीं तो नहीं पूछें। इजियर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कम से कम डेटा जो है वो एक्सेस करें किसी भी यूजर से या पर्सन से, लेस डाटा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इजी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है, तो उसके ऊपर क्या करो, सीधा अपना मेल आईडी और पासवर्ड एंटर करो और एग्री करवा दो, जेंडर पूछ लो, दैट्स इट, लॉगिन हो गया, बात खत्म। और उसको फर्दर अगर कोई अंदर कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लेने हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर मोर इंफॉर्मेशन कैन बी डिजायर्ड, बट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वेरी लेस डाटा शुड बी यूज्ड। देन देयर कम्स सम लीगल एग्रीमेंट्स to protect your privacy, that put a process in place so that if personal information is shared with a third party,
सिक्योरिटी टीम रिव्यूज इट्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब भी आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो एक सिक्योरिटी टीम होनी चाहिए। वो टीम क्या करेगी, आपके वो उस रिव्यू करेगी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के, और फिर वो क्या करेगी, देन सिक्योरिटी नीड्स टू गिव ए फाइनल साइन ऑफ, देन वो उसको वेरीफाई करके ओके बोलेगी, ओके है तो इन्फॉर्मेशन शेयर्ड, नहीं तो वो शेयर नहीं होगी। ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चुअली ओब्लाइज ऑल कंपनीज एक्टिंग ऑन योर बिहाफ टू कीप ऑल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। अगर आप किसी कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हो कि इसको सिर्फ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पज के लिए आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसी के लिए यूज करेगी और किसी काम के लिए यूज नहीं करेगी। ऑल्सो इनकॉर्पोरेट सिक्योरिटी अडेंडम इनटू लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, डेटा प्रोटेक्शन, प्रोवेंस एटसेट्रा। तो आप क्या कर सकते हो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हो फॉर एडिशनल सिक्योरिटी के लिए। सिक्योर टू ऐड मोर सिक्योरिटी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी साइंड ऑफ फॉर द डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि दिस इज यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्पस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। ऑल्सो डेटा नीड्स टू बी रेज्ड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी। अगर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो एक्सपायर हो गया तो वहां से डेटा भी इरेज्ड हो जाना चाहिए। These are the different kind of legal agreements that must be maintained to protect the privacy. Then you should also implement some access control mechanisms, like implement production access controls to ensure only authorized person can view information. आपने इन्फॉर्मेशन शेयर तो कर दी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर भी आप एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट कीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन जिस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा रिक्वायर्ड है, जो उसको यूज करने की जरूरत है, सिर्फ वही उसको यूज करे, कोई अदर पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पीपल लेस होंगे हैविंग द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, उतने ही जो आपकी प्राइवेसी है वो क्या होगी, मेंटेन रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल and auditing of access for all systems housing personal information। जो सिस्टम, जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो एक्सेस रखते हैं डिफरेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, तो उनके ऊपर क्या है, एक सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटिंग्स होनी चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम कि भाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये डेटा इसने कस्टमर से ले रखा है और ये इसको सिर्फ इसी पर्पज के लिए यूज कर रही है। their complete server having the information must be checked thoroughly by a particular governing body so that they can have a check on the information that if they are sharing that information with some other third parties or not। Use a persistent ID to refer to customers instead of email or SSN etc। किसी भी यूजर को अगर आपको रेफर करना है तो उसको नोटिफाई करना है तो उसके ईमेल और उसके पास जो कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यूज ना करें, उसके लिए क्या करें, एक डिफरेंट वर्चुअल आईडी क्रिएट करें, वो आईडी क्या हो उसके लिए कंसिस्टेंटली यूज हो ओवर द पीरियड ऑफ यूसेज। देन सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, there are various security strategies we can apply। Make maintaining privacy one of your company's strategic goals। आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे प्राइमरी गोल ये होना चाहिए मेंटेनिंग प्राइवेसी, कि आपने जो डेटा एक्सेस किया है किसी भी यूजर से, कस्टमर से, तो आप डेटा को सिर्फ जिस पर्पज के लिए है उसी के लिए आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे। यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल। सो फॉर दैट सिक्योर क्रिटिकल डाटा एंड इंश्योर इट्स प्राइवेसी। क्रिटिकल डेटा उसको सिक्योर करना और प्राइवेसी को इंश्योर करना, लाइक क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, कस्टमर के एड्रेसेस होते हैं, पर्सनल डिटेल्स होते हैं। रेज कंपनी वाइड सिक्योरिटी अवेयरनेस, कंपनी के लेवल के ऊपर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी अमंग द एम्प्लॉइज, अमंग द डिफरेंट कस्टमर्स रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूट सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉर इंजीनियरिंग, some secure coding practices should be implemented to secure the information। सिक्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आप यूजर्स के डेटा को सेव स्टोर्ड कर रखा है उसको भी आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो डाटा शेयर करने के लिए, लेकिन कोई अनऑथराइज्ड यूजर है, मैलिशियस यूजर है, वो उसको एक्सेस करके और उसको आपके सिस्टम को हैक करके इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ले। मेड द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती है, जो लीगल टर्म्स डिफाइंड होती है, वो दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन।
Then let's have the conclusion about the privacy, that have a clear privacy policy linked of your registration page. आपके registration page के साथ privacy policy must be link होनी चाहिए. Know the places your data travels to. आपको पता होना चाहिए कि आपका data कहाँ कहाँ पे travel करने लग रहा है. You know must know everything about your data. Add security addendums to your legal agreements. लीगल एग्रीमेंट्स के अंदर आपके सिक्योरिटी अटेंडेंस जो डिफरेंट प्रोसीजर्स, जो न्यू प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो मस्ट भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल एंड ऑडिटिंग फॉर ऑल सिस्टम्स. एक्सेस कंट्रोल आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑडिटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट यू कैन हैव ए चेक ऑन द इंफॉर्मेशन यूसेज. मेक प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी. आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर एक आप स्ट्रेटेजी प्लान्स फॉलो करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए. उसके अंदर आपके एक पार्ट आपके प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करना भी होना चाहिए, आपके स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट privacy in systems over the web resources. If you find any difficulties or any queries related to privacy, and then you can have uh, interaction with me on my through WhatsApp or a mail, whatever you like. Till then, thank you very much.